Hello, children. Good morning, everyone. Welcome to our new session. Today, we are going to start a new lesson in unit number 5. What is the name of this lesson? A different kind of school. One day, the author had heard a great about Miss Beam's school. Which school? Miss Beam's school. But he had not got a chance to visit the school. Hence, when the author did get an opportunity, he visited Miss Beam's school. On reaching the school, he saw a young girl whose eyes were bandaged and was being led by a boy much younger to her. एक बार ऑथर ने मिस बीम्स स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो स्कूल में विज़िट करने की। अब एक बार जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, जब उन्हें चांस मिला स्कूल में जाने का, तो वो स्कूल में गए। एंड स्कूल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक यंग गर्ल थी 12 ईयर्स अराउंड, उसको एक छोटा सा लड़का हाथ पकड़कर लेके जा रहा था। Here you can see that scene in this picture also. Now let's start this lesson. Everybody please attention here. Number 1, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. I means who? Here I refers to an author. When I arrived, there was no one in sight. The author said when he arrived at school, there was no one in sight. उन्हें कोई नहीं दिखा. What is the meaning of in sight? In sight means to be seen. उन्हें कोई नहीं दिखा, but a girl of about 12 years की एक गर्ल दिखी. Her eyes were covered with a bandage. अब उसकी जो आइज थी वो बैंडेज से कवर थी. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटल बॉय. हियर सी दिस सीन इन दिस इमेज. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. लड़का जो था वो लड़की से 4 years छोटा सा था. वो उससे हाथ पकड़कर लेके जा रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. Now the author said suddenly that girl stopped and she asked that boy also that who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. Number 3, Miss Beam was all that I had expected. Now he met Miss Beam, who was just as he had imagined, middle-aged, full of authority, yet kindly means friendly and understanding. Now here the author describes his look, his appearance, describe Miss Beam that she was authoritative yet a kind and an understanding woman. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. Plump means pleasantly fat. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. She told the author. जब ऑथर ने उनको उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा, जो कि उन्होंने बाहर से सुना था कि मिस बिम की टीचिंग मेथड्स जो है वो बहुत इजी है. हर टीचिंग मेथड वॉज वेरी सिंपल. नंबर 4, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit
still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. जब ऑथर ने उन्हें पूछा तो मिस बीम ने बताया कि जो थिंग्स उन्हें सीखनी चाहिए वो थिंग्स बहुत ही इजी मेथड से हम यहाँ पे सिखाते बच्चों को. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. एंड ऑल्सो रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम ऑल्सो. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? Now, when he met Miss Beam, he asked about her teaching method. She told the author that the real aim of her school was not to teach thoughts. कि उनके स्कूल का जो रियल एम है, रियल गोल है, वो क्या है? वो ओनली टीचिंग नहीं है, बट टू टीच थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू द चिल्ड्रन इन हर स्कूल. बच्चों को काइंडनेस, दूसरों की तरफ कैसे काइंडनेस हम दिखा सकते हैं, वो ये स्कूल में सिखाते हैं. देन ऑल्सो वी टीच दैट बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए. वी ऑल्सो टीच लाइक दिस टू स्टूडेंट्स. देन शी टोल्ड द ऑथर टू लुक आउट ऑफ द विंडो. नंबर 6, I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. जब ऑथर ने विंडो के बाहर देखा तो मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख सकते हो? What do you see? आपने क्या देखा बाहर? Now the author said, I see some very beautiful grounds. I said, and a lot of jolly children. क्या बोला ऑथर ने? कि मुझे ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिख रहे हैं, देन मुझे जॉली चिल्ड्रन मीन्स खुशहाल बच्चे दिख रहे हैं. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. बट मुझे एक बात देखकर पेन हुआ कि सब बच्चे जो है यहाँ पे वो एक्टिव लुकिंग और हेल्दी नहीं दिख रहे हैं. When I came in, I saw one poor little girl being led about. Now the author said, Miss Beam, कि जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जो एक बॉय उसे हाथ पकड़कर लेके जा रहा था. She has some trouble with her eyes. उसकी आइज़ में थोड़ी सी ट्रबल्स थी. Now I can see 2 more with the same difficulty. अब उसके जैसे मैं दूसरे 2 बच्चों को भी ऐसे ही देख रहा हूँ. Same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at play. और एक लड़की को मैं देख रहा हूँ कि जो बेचारी बनी हुई दूसरों को प्ले करते देख रही है. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रीपल. वो एक अनफॉर्चुनेट क्रीपल के जैसे मुझे दिख रही है. होपलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपलेस? मीन्स अनफॉर्चुनेट और विदाउट होप. सो द ऑथर, she told the author that as a part of the system in the school. Now when the author asked Miss Beam कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा एटमोसफियर है, बच्चे भी खुशहाल हैं, बट सम चिल्ड्रन को मैं डिफ़िकल्टी के साथ, ट्रबल के साथ देख रहा हूँ, एंड दे आर नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. मिस बीम लाफ. अब ऑथर की बात सुनकर मिस बीम को थोड़ी सी हंसी आई. ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम. क्या बोला? कि नहीं, वो लेडी जो है, वो गर्ल है, वो लेम नहीं है. लेम मीन्स कि एक्चुअली में हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है. दिस इज ओनली हर लेम डे. वो जो लेडी है वो
लैम नहीं है, बट हमारा वो दिन जो था वो लैम डे था. कौन सा था? लैम डे. लैम डे मीन्स डू यू नो? लैम डे मीन्स अ डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लैम. लैम डे मीन्स एक ऐसा दिन कि जिस दिन किसी को जैसे कि वो लैम हो ऐसा एक्ट करना पड़े. इट्स कॉल्ड लैम डे. तब मिस बीम जो थे उन्होंने बोला एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इन द स्कूल ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे, वन डम डे एंड वन इंजर्ड डे. क्या बोल रहा है मिस बीम? क्या बोल रही है कि वो एक्चुअली में ब्लाइंड नहीं है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. वो उनका ओनली ब्लाइंड डे था. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. तब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जब वो हंस रही थी तो मैं बहुत सरप्राइज हो चुका, आश्चर्य हुआ कि ये मिस बीम जो है वो क्या बोल रही है. नाउ मिस बीम से दिस इज अ वेरी important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. कि हम हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए सिखाते हैं. जो मिसफॉर्चून है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सिस्टम का. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. अब जो ये मिस बीम की स्कूल थी उसमें कैसी सिस्टम थी? तो उसमें एक टर्म में एक ऐसा दिन रखते थे कि जो ब्लाइंड डे होता था, एक लैम डे होता था, एक डीफ डे होता था, वन इंजर डे एंड वन डम डे, एक डम डे होता था. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. अब मिस बीम ने क्या बोला वो बता रही है कि जब ब्लाइंड डे होता है तो हम बच्चों की आँख में, आइस में बैंडेज बांध देते हैं. दे आर ब्लाइंड फोल्डेड. देयर आइज आर बैंडेज मीन्स दे आर ब्लाइंड फोल्डेड. एंड देन सो देयर ऑनर नॉट टू पीप. एंड हम उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि अब आपको ये पूरा दिन ब्लाइंड की एक्ट करना है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड. इवन जो बैंडेज है वो पूरी रात भी हम बंधे रखते हैं कि जब वो उठे तो वो ब्लाइंड उठे. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि उनको एवरीथिंग मीन्स सब काम में हेल्प चाहिए. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम. एंड दूसरे बच्चों को हम ड्यूटीज़ देते हैं कि उनको हेल्प करें. एंड लीडिंग दैम अबाउट. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. एंड इस तरह से वो बहुत कुछ सीखते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड हेल्पर्स. एंड दोनों ही सीखते हैं. जो ब्लाइंड एक्ट करते हैं वो ब्लाइंड बच्चे भी सीखते हैं एंड दूसरे जो उनको हेल्प करते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं. दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट मिसफॉर्च्यून बाय मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ द मिसफॉर्च्यून. Now remaining lesson we will discuss in next session. I hope you understood well. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.